You are visible my screen now? Anything? I'm not sure of that. No. My screen visible or not? No, sir. Okay. I have shared Yes. Now it's again. visible. Okay. So, so that's why we are taking care of the this way. We are creating database. We can using this way. A real-time scenario. If I want to take only my file group backup, that case I only take a file group backup. I don't need to all the my database backup. Suppose my database size is very large size, then I want to take only backup only the specified file group. They are critical only. That case I take this scenario or other thing. We Sir, have my segregate question my. is that if the table, Yes, hello, go ahead. Yeah, go ahead. yes, if my table is already created in a primary, uh, Okay. does it also exist? Means if the file is in SS, suppose secondary, we have given the access, but does No, the file exist in primary also? That same? no, no. No, it will If I totally be created in secondary. yes, these are suppose two file group, and I'll tell you one more thing. I'm going to here and tell you file group and file. Suppose here I'm going MDF file or NDF file. For example, I create one file here. That case I select SSD Sir, or other system. Hello, your no, it was stuck. my window is stuck. Just 1 second. Yes, now Control. it's visible. Next. So now visible. Yes, sir. Now, so that case I tell you, I'm going to here my demo DB, right click and property. I want to create some more file group or more files. That file group I am only putting to read only file or read write only file. Okay. That case I selected raw data. Okay. And SSD Sir, file or again file it group. is stuck. Again it's stuck. Now it's That okay. case Now it's okay. Now now it's okay. okay. So that case we have selected file row file group, which is the my file group secondary, and I want to also identify now this is the my file group. This is my primary. This is secondary. We can also select where it to want to save D drive, E drive, F drive, which is the my file group name. So we can totally identify. We have if I am any table creating that table going to the secondary file group and secondary path, which I have share my path, which I have save it. Okay. Okay. So Okay. we can only the better management. It's just a better management your database and better to approach for restoring. Suppose my database only this file will corrupted. That case I am only using only this file group. Na restore only this file group. Not restore Okay. complete database. Na okay. Okay. So that's why na. And second Mm. thing I tell you one more important concept which have a database synopsis. Database synopsis means how why this will be important or why this will be a sometime very useful for the creating database synopsis. So I will go into the DB server and connect it. Okay. Here you say the one folder database snapshot. Here is empty. Suppose I want to create the database snapshot my adventure bug. For क्यों इसके लिए क्यों क्रिएट करना चाहता हूँ मैं इसका एक रीजन है मेरा ये डेटाबेस है ये डेवलपमेंट डेटाबेस है या प्रोडक्शन डेटाबेस है आप इसको थोड़ा सिनेरियो टाइप पे समझना ये मेरा प्रोडक्शन डेटाबेस है Mm. ठीक है और इस पर Mm. क्या है टीम और टीम ने अभी डेवलपमेंट किया है अब टीम ने जो भी डेवलपमेंट किया है टेस्टिंग में डेब डेब पे टेस्टिंग पे जो भी डेवलप बट टीम ने कुछ कोड यहाँ पे डालना चाहती है ठीक है इस वाले डेटाबेस पे जो भी स्टोर प्रोसीजर है फंक्शन है जो भी है टीम यहाँ पर डालना लेकिन हमें ये नहीं पता बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट जा रहा है हमारा हो सकता है हमारा बहुत रिलीज 2.1 है 2.2 जा रही है काफ़ी बड़ा डिप्लॉयमेंट जा रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस डेटाबेस का दो तरीके एक तो हम बैकअप लेके रखते हैं डेटाबेस का ठीक है अगर हमारा Mm. ये Mm. डेटाबेस बैकअप लेके रखते हैं कि सेफ्टी पर से कुछ भी अगर मिस होता है मिस हैपनिंग होती है तो हम डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हैं ना Okay. दूसरा तरीका रिस्टोर कर सकते हैं बट उसमें भी एक डिपेंडेंसी है
सपोज आपका ये डेटाबेस है जो प्रोडक्शन का हो सकता है बहुत लार्ज साइज का हो, जैसे 10 टीबी का डेटाबेस हो या 20 टीबी का डेटाबेस हो या आपका एटलीस्ट 100 टीबी का डेटाबेस हो, तो आप उसको बैकअप लेके रिस्टोर करने में कुछ मिस से हैपन होगा, तो आप उसको बैकअप को तो है आपके पास, बट आपको रिस्टोर करना उसमें हो सकता है आपको 4 घंटे लग जाए, तब तक आपका यूआई डाउन रहेगा ना, जो एंड यूजर है हाँ प्रोडक्शन डाउन रहेगा ना। तो उस केस से हाँ अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि कोई भी बड़ा डिप्लॉयमेंट जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक इस डेटाबेस पे स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, ठीक है, डीबी स्नैपशॉट क्रिएट, इसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है बट वो रीड ओनली कॉपी होती है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी ओके होती है, रीड ओनली कॉपी होती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि उस डेटाबेस में कुछ नहीं कर सकते, इसका जिस टाइम पे मैंने स्नैपशॉट क्रिएट किया उसी टाइम का इसका स्नैपशॉट क्रिएट हो जाता है और ये स्नैपशॉट डेटाबेस के अंदर आता है। उसका एक फीचर बेनिफिट और होता है, आप वहां से रिस्टोर करते हो बैकअप से, तो वो बहुत टाइम लेता है, यहाँ से आपको रिस्टोर विद इन सेकेंड रिस्टोर हो जाता है एग्जैक्ट प्रीवियस कंडीशन में। जैसे मैं आपको बताता ओके हूँ, जैसे मैंने यह डेटाबेस लिया, ठीक है, इसमें हम्म मैंने एक टेबल है और इस टेबल में एडिट पे गया मैं, ठीक है, इसमें कोई डेटा है नहीं, चलिए मैं छोटा डेटाबेस लेता हूँ कोई भी, ठीक है, या एस सी एस ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें एक टेबल है और इसमें मैंने कुछ एंट्री डाल दी, ठीक है, और पहले एंट्री डालने से पहले आपका ये मैं अभी एंट्री डालने से पहले स्नैपशॉट लेता हूँ, ठीक है, एस सी एस का मैं आपको हम्म बता रहा हूँ रियल टाइम सिनेरियो। तो मैं यहाँ पे हम्म जाता हूँ टी एस क्यू एल, टी एस क्यू एल डेटाबेस, ठीक है, आपको रियल टाइम सिनेरियो समझाता हूँ। ये ओडमी पे ये कोई नहीं बताएगा, ओके तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने क्या किया, ये मेरा डेटाबेस है कौन सा, ये मेरा एस सी एस डेमो डेटाबेस है, ठीक है, इसका मुझे स्नैपशॉट क्रिएट करना है, ठीक है, इसका क्यों क्रिएट करना है कि मेरे इसमें डिप्लॉयमेंट जा रहा है, मेरी अभी एक ही टेबल है, ठीक है, इसका मुझे एग्जैक्ट कॉपी हम्म रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एस सी एस का बोल हम्म लिया, राइट क्लिक किया, जो भी आपका डी बी नेम है आप यहाँ पे अपने पुट किया, मेरा डी बी नेम है एस सी एस, ठीक है, ठीक है, मैंने एस सी एस, एस सी एस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एस सी एस का स्नैपशॉट दिया, ठीक है, और ये मैंने एस जी एस, इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ना डॉट एस एन ए पी होता है, ठीक है, ओके और मेरी डी ड्राइव है, मेरे पास ई वो ड्राइव नहीं है, तो और मैं किस डेटाबेस का स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा हूँ, आपको इस फाइल का लॉजिकल नाम पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं प्रॉपर्टी पे गया, तो जो फाइल का नाम होता है ना, ये फाइल्स, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ हम्म बताता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ से रीनेम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं एस सी एस बंद कर दिया ना, ये देखिए, हम्म और मैं अगर अब इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा होगा तो रीनेम हो जाएगी, या कोई सेशन ओपन नहीं होगा, तो अच्छा ये ओपन है, तो आई थिंक ये नहीं होगा, अब इसको वो करते हैं, अवॉइड करिए, सिर्फ मैंने कल सेशन में साउंड होगा, ओके, ये अभी यूज होता है इसलिए इसने को अवॉइड कर दिया, लॉक है तो इसने रीनेम नहीं किया, अगर ये यूज नहीं हो रहा तो हम इसको रीनेम कर सकते थे। तो इसका ये जो यहाँ पे नेम दिख रहा है एस सी एस वन, और ये बैकएंड से जो नेम है लॉजिकल नेम और इसका नेम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमेशा यहाँ पे जो आप पुट करोगे वो लॉजिकल नेम पुट करोगे कौन से डेटाबेस का, ठीक है, ओके ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ, ओके, मैंने इसका स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया, जैसे ही स्नैपशॉट क्रिएट करोगे तो यहाँ सक्सेसफुल क्रिएट हुआ, आप इस फोल्डर को रिफ्रेश करोगे, डीबी स्नैपशॉट को रिफ्रेश किया, अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, तो उसके बाद आप इसमें एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डीबी स्नैपशॉट जो रीड ओनली होगा डिफॉल्ट, जैसे मैं आप इस पर एक कैमरे का आइकॉन सा आता है, ठीक है, ओके तो अब क्या हुआ मेरा, मेरी डेवलपमेंट टीम ने क्या किया, यहाँ पे कोड डाला, ठीक है, गलती हम्म से मेरी टेबल डिलीट कर दी, ठीक है, कहीं ओके स्क्रिप्ट लिखी है मेरी टेबल ड्रॉप कर दी, ठीक है, ओके अब मुझे
मेरा तो डेटाबेस ये गड़बड़ हो गया ना, मेरे को चाहिए, मेरा प्रीवियस स्टेज में मेरी टेबल थी ना इस डेटाबेस में, तो फिर क्या करेंगे, इस डेटाबेस से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे? इसको आप ड्रॉप या तो डिलीट कर दीजिए, जैसे मैंने इसको डिलीट किया। आप अगर इसको रिस्टोर करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। देखिए, मैं गया, मेरा ये एस था, रिस्टोर एस फ्रॉम डेटाबेस स्नैपशॉट। कहाँ से? एस का जो स्नैपशॉट बनाया मैंने इससे। तो इससे मैं तुरंत रिस्टोर कर सकूँ विद इन सेकेंड, कितना भी बड़ा आपका डेटाबेस क्यों ना हो। ठीक है, और इसको इस तरीके से यूज मास्टर किया और आपका वो टेबल एग्जिट आ जाएगी आपके डेटाबेस में, विदाउट आपको रिस्टोर और बैकअप का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, अगर कुछ इंडिपेंडेंसी नहीं चली तो ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम भी और लेता है, सर बट ये पूरा मतलब डेटाबेस का जितने भी टेबल्स होंगे सब रिस्टोर होंगे क्या? सब नहीं, सिर्फ एक ही जो एस का, हाँ, जितने भी टेबल होंगे। हाँ टर्मिनेट हाँ। कैन नॉट बी चेंज वाइल द अदर यूजर आर यूजिंग दिस डेटाबेस। ओके, क्या बोल रहा है कि आपको इसको और यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से जो सेशन है ना, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। एस के जो सेशन है ना, इनको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद तो यस, ये किस पे हैं? ओके, अब मैं क्या था, न्यू रिस्टोर, और मैं इसको यूज मास्टर किया। ठीक है, इस डेटाबेस को रिस्टोर करता हूँ। कुछ इशू ना हो तो ठीक। इस पे हम रिस्टोर कर सकते हैं। कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है इस डेटाबेस को? अच्छा, अब हमें पता करना है कि क्या ये हमारा डेटाबेस एक्सेस हो रहा है। यूज मास्टर, और यहाँ पे EXEC हुज एक्टिव। मैंने ये आपको ये उस कल बताया था या नहीं बताया था हाँ ये हाँ। प्रोसीजर? तो इससे आप चेक कर सकते हो मेरा मेरा अभी कुछ तो यूज नहीं हो रहा, फिर ये क्यों दे रहा है। तो इसका एक तरीका है, जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको जाता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, क्लोज द कनेक्शन और ड्रॉप द डीबी। अगर ये अभी भी क्या रहा है, ड्रॉपिंग डेटा इज फेल ड्यू टू द, हाँ ओके, ये ड्रॉप भी नहीं होगा क्योंकि स्नैपशॉट सिंगल यूजर मोड में चला गया। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टी यूजर मोड ऑप्शन। जैसे कोई डेटाबेस सिंगल यूजर मोड में चला जाता है ना कभी कभी, तो आप उसको मल्टी यूजर मोड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं। और मैं इसको ऑल, आई थिंक मैंने कहीं ना कुछ कनेक्शन ओपन करके रखा है जो इसको यूज कर रहा है। रिस्टोर डेटाबेस SCS फ्रॉम डेटाबेस स्नैपशॉट SCS। सर हम जब मतलब वो डेटाबेस अगर हमने ड्रॉप कर दिया हाँ और उन्होंने डिप्लॉयमेंट टीम ने उड़ा दिया है वो उसमें से वो एक हाँ टेबल को, तो हाँ, अभी हमने वो डेटाबेस ड्रॉप कर दिया और जब हम रिस्टोर करते हैं तब हमें वो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है या वो ऑटोमेटिकली पूरा रिस्टोर हो जाता? ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैं इसको बता रहा था इस ऑप्शन को, कि इसको मैंने कल सुबह मॉर्निंग क्लास में बताया था। मे भी कुछ सिक्योरिटी, मेरा एक तो चेंज डेटाबेस स्टेट कैन नॉट बी चेंज वाइल द अदर यूजर विश एंड रिस्टोर द डेटाबेस टर्मिनेशन विल बी ओके। सो आई एम गोइंग टू हियर this 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 will be because it's not in this session. I think session issue something. So I think I need to close all the session. Then I tell you. ओके। अगर हमें सभी सेशन क्लोज करना तो राइट क्लिक क्लोज ऑल अबाउट दिस, तो जितने भी सेशन ओपन है वो सब क्लोज हो जाएंगे।
सेव नहीं करना चाहते तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज क्लोज ऑल अबाउट क्लोज ऑल। तो बन पे ये है सेट। कभी कभी ये इशू भी बहुत करता है ऐसा समझ। अच्छा ये यहाँ पे तो हम पेपर फ्रॉग स्पेस दिस विल बी यूजिंग अच्छा ये सेशन कल से मेरा एक ओपन था ना, जो मैं बता रहा था ना, ये 29/9/6 ये मेरा कल की डेट का सेशन ओपन था, इस वजह से ये आपको रिस्टोर करने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी किया, इसको कट किया, इस सेशन को 52 को क्लोज किया। जैसे 52 सेशन को क्लोज करूँगा तो मेरा कोई SES पे सेशन नहीं है। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर हो गया। ठीक है, ये डेटाबेस मेरा रिस्टोर हो गया। अगर आप इसमें चेक करोगे ना तो वो टेबल एग्जिस्ट। अच्छा मेरा पुराना स्नैपशॉट था ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी टेबल आ चुकी, देखिए ना। ओके। तो आपको बहुत बड़े डिप्लॉयमेंट के लिए आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता ना, जस्ट। ठीक है, तो हम दिस वे कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके डिप्लॉयमेंट में क्या गड़बड़ होगी। तो आप DBO सेफ्टी पर्पज से आप इसको बैक ऐसे करके रखो तो आपको बहुत कम टाइम में आपका डेटाबेस रिस्टोर हो जाएगा, डाउन टाइम भी कम मिले रहेगा। ठीक है, और ये बहुत छोटी सी कमांड है, और बट हाँ इसका साइज क्या होता है ना, जो आपका स्नैपशॉट होता है ना उसका साइज और डेटाबेस का साइज एग्जैक्टली सेम होता है ना। तो ये एक लिमिटेशन है। जैसे देखिए इसका साइज देखेंगे ना तो आप इसका फाइल का साइज 8 MB है। तो डिफ़ॉल्ट देखिए सिर्फ एक ही फाइल बनी, इसमें आपको और भी लॉग फाइल और कुछ नहीं दिखेगी, देखिए ना। ओके ओके। तो सिर्फ डेटा फाइल बनी है और इससे आप रिस्टोर कर रहे हैं बहुत विद इन फ्रिक्वेंटली। आपका आप हो सकता है जैसे हर वीक में आपका डिप्लॉयमेंट जाता है। ठीक है, जैसे इस वीक गया, सैटरडे को गया, फिर नेक्स्ट, तो आप क्या करें, यहाँ जो स्नैपशॉट बनाए वीक बाई के वीक के नेम से बनाते हैं, 11 तारीख का, 15 तारीख का, 20 तारीख का। आप किसी को, आपको 10 दिन बाद पता चला कि 15 तारीख के वीकेंड पे मेरी एक टेबल थी वो मिस हो गई। ठीक है, तो आप 15 तारीख का रिस्टोर कर दीजिए, उसके बाद आप से या 16 या एक टेबल वहां से निकाल के फिर उसको मूव करा दीजिए। एग्जैक्टली आपको रिकवरी करने का या हाँ ओके ओके। अगर हमारा डेटाबेस 10 GB का होगा तो स्नैपशॉट भी टाइम लेता है थोड़ा, या इमीडिएट होता है स्नैपशॉट? थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंडिंग करता है। जैसे मेरा ये डेटाबेस है शायद एडवेंचर वर्क का, ये प्रॉपर्टी है, ये कितने GB का है फाइल, ये शायद समथिंग ऐसा 192 MB। तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट ये टाइम लेता है। ठीक है, डिपेंड करता है, बट स्नैपशॉट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ठीक है, अब हम आपको सेकंड थिंग क्या बता रहे थे, हाँ ये आपको जब भी कोई सेशन ओपन हो रहा है तो आप इसको, क्योंकि ये मेरा पुराना सेशन था इसलिए मेरे SP व्यूज एक्टिव में दिया नहीं, और कंप्लीटेड सेशन था इसलिए मेरे को ये दे नहीं रहा था मेरा। और 6 डेट ये आज मैंने जब इसको चेक किया तो ये पता है कि मेरा यहाँ 6 तारीख थी ना, 7 और 6 सितंबर। सो दैट्स वी आर आल्सो समटाइम वी आर worry about why the session not running. So that's why you not worry about but checking everything properly. Okay. So second thing, we have add file group and schema. Schema I have tell you na. Schema means default schema will be DBO. If I want to create my schema, suppose this is a DBO schema. Schema come into the security feature na. So I'm going to here, and this is the DBO schema. I want to create one more schema. Can I create here before schema? Can I create same name table here also in this DB? For example, SES DB. Can I create this table in same name? For example, I put this and just give me a create table. Okay. If I create the same name table, we cannot do this. Okay, it's give me the, there is already object name existing, but I tell you, if I creating here one schema, security schema, schema name new,
एंड KK, ठीक है, and scheme owner, default permission owner, okay, extend and okay. I have created, if I create the same name table, same database, then we can create, and just put into here, create a schema, give me schema name and create this table, and you can create this table. Your database have a two table with exactly same name, okay. And I want to give this table only the UI team permission. This schema give me to only the finance team. So we have given the permission on the schema level. Okay. I put here. Suppose I want to add 100 table in this schema. Now only I need to permission give on schema level, not all the tables. Okay. Suppose I click this property and go to the permission, and here add to search any users, or like a tumbles, check in this object name users. We can do this users, check this browse name, guest user, or whichever. Suppose we have created this user and I want to give the all the execute permission this schema, all the table that have a, this user have a execute permission, guest user or whichever you want to create user that have all the permission. No need to create a separate permission, or I want to restrict this user not to take only the execute view the definition, only this user take a definition, not insert, update, delete, running, delete to deny to delete. Okay, so this user not deleting my tables on all the schemas. Okay, means the tables under that schema, he will get the read-only access for that. Read-only protected to give. Suppose I want Asura only access the this schema tables, and Rosni access only the DBO schema tables. They want to go to here only see, but not access, not any insert, update, select, not anything they do it. So I give it the more restriction. Okay. Yeah, anything Aishwarya or Rosni till now? Rosni, any question? I think Rosni. Yes, sir. Any question here till now? No, sir. No question. Because now my meeting is sir. That's why I'm not. Okay, no issue. No issue. Ha. So that's why we have done it till now. We are going to the implementation of security. Can we take module 4 today, or can we take everyone available in fourth module? So it's your dependent both with you. I guess let everyone be present, I guess. Yeah, this is the security module, most important module. So that's why I will be security. I have already. Yes. Sorry. हाँ, मैं और कल सुबह करूंगी ना लॉगिन, तो कल लेना हमारा दोनों का. सर शायद मैं भी कल सुबह ही करूंगी, क्योंकि मेरी मतलब हमारे घर पे पूजा है कल शाम को, तो मे बी आई लॉग इन मॉर्निंग. if they are available, I will also be available in morning then. मॉर्निंग में भी सेम सेशन स्टार्ट होगा कल. हाँ चलेगा. फिर यूजर लॉगिंग में अगर हुआ ना तो मैं सुबह कर लूंगी ये सेशन. हाँ, तो फिर क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, मतलब प्रिपेयर किया, इससे डॉक्यूमेंट विल बी ऑलरेडी ओपन, सो दैट्स व्हाई वी कैन डू इट. हाउ मेनी लॉगिन्स और एवरीथिंग विल बी ओपन. ओके चलेगा. सो आप लोगों के यहाँ पे अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है. मेरे को तो वैसे भी लेट नाइट अभी पढ़ना होगा, तो फिर मुझे कोई इशू है नहीं. आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए एग्री हूँ. नहीं, सबको आने दो सर, फिर करते हैं ऐसा. मेरे को लग रहा, अगर आपको कुछ बताना है तो बता सकते हैं यार. कि ये सिक्योरिटी मॉड्यूल है, और इसमें आपको मैंने कल पेज टाइप और पेज आर्किटेक्चर तो आपको बता ही दिया था ना उस दिन. सब कुछ. हाँ.
तो बस अब ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। 3 मॉड्यूल के बाद मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूंगा सब लोगों से। ठीक है, ठीक है। 4th मॉड्यूल स्टार्ट कर दूंगा, चलेगा। लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल नहीं लूंगा, मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा। मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा और आपको उनको क्रिएट करने होंगे। आप अपने इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए और मेरे को टी स्क्वेयर इसका भेज दीजिए, ताकि ये रहेगा आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है। मेरा मेरा मानना तो मैं तो इसको आपको एक दिन में ये इम्प्लीमेंटेशन करके बता दूंगा, लेकिन रीजन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, नहीं सर, तो नॉलेज टेक्सटिंग भी जरूरी है। नहीं, मैं बराबर है। इसको सर मैं क्या बोल मैं रही थी, मॉड्यूल 3 के बाद क्या लेने वाले हो, कि मॉड्यूल 4 के बाद लेने वाले हो टेस्ट? मैं बीच में लूंगा, बताऊंगा नहीं, सरप्राइज लूंगा। चलेगा चलेगा। उससे ये रहेगा ना, आप लोग एटलीस्ट पढ़ोगे ना। हाँ हाँ, हाँ बराबर। बराबर है। सरप्राइज लेकिन में सर थोड़ा 2-3 दिन के बाद लेना। हम्म, आपको दे दूंगा, मैं बोल दूंगा ये चीजें इम्प्लीमेंट करके दे दो मेरे को। हाँ सर आपके जो एक्सप्लेनेशन नोट्स है ना, वो मॉड्यूल 1 आपने जो दिखाए थे फाइल ग्रुप या इसमें सब, हाँ, वो आपने सेंड किए है क्या? फाइल ग्रुप मैंने शायद सेंड किए हैं, पेज एंड एक्सटेंड फाइल ग्रुप मैंने सेंड किए हैं। मतलब देखिए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के जो भी आपके नोट्स है ना, वो हाँ वो वाले मैंने सेंड किए हैं। किए है क्या? अगर नहीं किए होंगे तो मैं उसको कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरे इसमें डाउनलोड में तो नहीं दिख रहे। वो इंस्टॉलेशन का है, इंस्टॉलिंग का। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इवनिंग बैच मॉड्यूल 3 टिल वर्किंग डेटाबेस मॉड्यूल 3 ये। हाँ, आपको मैंने रीबिल्ड मास्टर डेटाबेस बता दिया था क्या उस दिन? नहीं नहीं, नहीं नहीं। मास्टर डेटाबेस आप मेरे को रिमेम्बर करा देना जब सब लोग हो ना। तो मुझे क्या हाँ करना हाँ, है, एक तो मास्टर डेटाबेस और रीबिल्ड कैसे करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम डेटाबेस, सभी सिस्टम डेटाबेस को रीबिल्ड कराना सभी को। ओके ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अदरवाइज क्या होगा ना, जैसे कभी आपको कुछ लोग बोलते हैं मास्टर डेटाबेस ही करप्ट हो गया, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और ना तो बैकअप ले सकते हैं ना रिस्टोर कर, बट है ऑप्शन होता है, आप इसको मास्टर डेटाबेस को रीबिल्ड करा सकते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, 2-3 मेथड है। बट हाँ, इसके लिए आपको सेटअप फाइल चाहिए, आपको CMD कमांड से आपको जिस डायरेक्टरी में डेटा फाइल रखी है और सेटअप फाइल रखी है, वहाँ पे कौन सा आपका पहले बिल्ट इन यूजर था, क्या पासवर्ड था, वो सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये मेरे को रह गया, मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है। और 4th मॉड्यूल में हम सिंप्लीमेंट सिक्योरिटी में मैंने डॉक्यूमेंट मेरे बने ही हैं। मैं इसको ले ही सकता हूँ कभी, आज चाहो तो आज, बट मैं सोच रहा हूँ आप लोग इकट्ठे हो जाओ तो। एटलीस्ट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर, अगर आप लोग मॉर्निंग में सब लोग क्लास ले सकते तो बेटर है, या इवनिंग में सब लोग, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए मॉर्निंग में, 2 के लिए इवनिंग में, थोड़ा सा मेरा टाइम भी बेस्ट होता है ना। मॉर्निंग में क्या है सर, हमारा ये भी रहता है ना, मतलब मेरा तो अल्टरनेट है फिलहाल, तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहता 6 से 3 बजे तक, पर इतना लोड नहीं रहता। पर अगर हुआ तो कर सकते मैं वैसा मॉर्निंग भी। भाविका का इशू है भाविका खाली। उसका है ना सर, ओके। सुबह डिप्लॉयमेंट रहती है 7 बजे से 9 बजे तक। हाँ तो आप आई थिंक वीक में ना 2 और 3 डेज रहता है उसका, तो इसके वजह से बाकी कुछ नहीं। नहीं तो सर एक आपको एक सजेस्ट करूँ क्या मैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। आप बोलिए हाँ, बोलिए आप सैटरडे संडे कंफर्टेबल है क्या हमारा लेने के लिए? सैटरडे संडे सैटरडे मीन्स संडे में सभी कंफर्ट हूँ, हाँ बट मीन्स कभी हमारे कभी ना सैटरडे प्रॉपर, संडे में ट्रेवल। नहीं हमारे ना प्रॉपर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर रहेगा, ध्यान प्रॉपर रहेगा उस पे, ऐसा बोल रहे हैं हम। का गा इशू तुला काही प्रॉब्लेम आहे नाही, मला काही की प्रॉब्लेम नाही? नाही आहे, बाकीच्यांना बघ. त्यांचं बघ विचारते परत. नहीं, तर मैं प्रॉब्लेम स्नेहल स्नेहल ने ने अभी ज्वाइन किया ज्वाइन अभी. किया है। और हाँ,
सर वो कल कितना सुबह लेट? अवेलेबल रहेगी तो कल हम वो यूजर लॉगिन ले सकते हैं। आप लोग एग्जैक्टली क्योंकि सब लोग रहेंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है ना पढ़ाने में। हम्म, थोड़ा सा आप लोग जब जितना ज्यादा स्नेहल क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना। क्या हो रहा है ना हमारा स्नेहल वो नाइट शिफ्ट भी था। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ ये हाँ तो सर। हाँ, बट अभी मीटिंग भी था तो उस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अभी वो मेजर मेजर एक्टिविटी चालू है ना ऑफिस में, तो वो इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ऐसा हो रहा है, वो टाइम का थोड़ा सा एडजस्ट स्नेहल नहीं ऐक होता। ना, सॅटर्डे हाँ, संडे करायचं का ग? सॅटर्डे संडे फक्त म्हणते मी सरांना, म्हणलं आपलं अरे हो, पण मला ऑफ नसतो यार सॅटर्डे संडे. मला रोटेशनल ऑफ आहे. मग आज माझी सुट्टी होती, स्टील मला मीटिंग होती आज. असं सीन होत. असं असं. म्हणून मी काय म्हणत होते, मॉर्निंगचं म्हणत होते 6:30 किंवा असं असेल ना, म्हणजे क्लास बंक होणारच नाही. किती? 6:30 वगैरे, म्हणजे आपल्याला पुढच्या 6:30 कामाला ए यार पण माझी रात्री शिफ्ट संपते. हाँ आपण नंतर बोलू सरांचं झाल्यावर, मग आपण सरांना सांगू. सर हम है ना, हम डिस्कस करते हैं फिर आपको बोलते हैं, चलेगा ना? हाँ आप डिस्कस कर हेलो? लीजिए। एक्चुअली मुझे कोई इशू नहीं है मेरे। हेलो हाँ हाँ बोलिए सर। हेलो, मुझे कोई इशू हाँ नहीं है बोलिए सर। आप। अभी सब बट क्या ये हो है रहा कि था आप ना, लोग अगर सब लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे ना तो थोड़ा सा आप लोगों को कभी कोई टॉपिक मिस भी हो सकता है, तो वो बाद में फिर वही हो ये रहा है। होगा कि और प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अभी गणपति की वजह से भी बहुत छुट्टी हो गया अभी मेरा, 2-3 दिनों से हो गया। भाविका भी नहीं, सुबह क्लास भी नहीं हो पाई आज, और ये भी तो ठीक है मैंने तो सर, बोला था सुबह तक। और आपको थोड़ी सी बात बता दी, ठीक है? ठीक है, आप लोग कल मॉर्निंग में कौन कौन क्लास लेगा आप वो लोग बता देना, तो फिर मैं उसी हिसाब से, बता दूंगी। क्योंकि आप ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि मेरे को पहले आप आधे एक घंटे पहले मेरे, तो बाकी फिर मैं अपना जिम का टाइम और बाकी सब सेटल वो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर। अभी बताते सर, हम डिस्कस करते और रात को ही डाल देंगे आपको ठीक है पे। ठीक है, इट्स ओके। कल फिर हम ओके सिक्योरिटी टॉपिक लेते हैं। अगर आप मॉर्निंग में लेना चाहो तो सब लोग मॉर्निंग में लेना, और इवनिंग में लेना चाहो तो सब लोग इवनिंग में, कभी भी आप एक टाइम क्लास ले लो। अगर 2 लोग मॉर्निंग लेते दो इवनिंग तो भी कोई इशू नहीं है, बट आप एटलीस्ट ठीक क्लास है। तो ये कोई इशू है नहीं। हाँ बट जब कोई ठीक रहता है। नहीं तो फिर क्लास कैसे अटेंड होगा? हाँ हाँ वही ना। फिर मेरा भी बरोबर. टाइम वेस्ट हो जाता है कि मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गेटअप होता हूँ और मैसेज देखता हूँ कि कोई क्लास नहीं है आज, कोई ले नहीं रहा। हम्म, हम्म। अच्छा, आप लोगों से एक ठीक है। रिक्वेस्ट थी, और कोई अगर जो इंटरेस्टेड हो ना क्लास के लिए, तो आप हाँ उनको एक हाँ बार रेफर कर सकते हैं, जो भी एसएलडी भी है। और नेक्स्ट ओके मंथ से तो मैं एज्योर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके. चलेगा, पूछते हैं हम लोग। ठीक है, निखिल आपके साथ ही काम करते ना आप लोगों के साथ? कौन कौन? निखिल देशमुख। नहीं, हाँ, नहीं मैं करती हूँ रोशनी, मैं करती हूँ उसके साथ काम, मेरा अच्छा अच्छा कलीग है वो. अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ. ओके ओके, no issue। ओके सर, बोलते सर आप, आपको फिर हम क्या है. ओके. ठीक है, आप टाइम का डिस्कस करके बता दीजिए ग्रुप में, देन वी कैन टेक इट टुमारो। सिक्योरिटी टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके उसको लेना है। ठीक है चलेगा सर। बाय, हैव अ गुड हाँ नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।